ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ EMF। ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਔਰ EMF ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ 'ਚ ਆਬਸਟੈਕਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। EMF ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ, ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ I ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ I ਦਾ, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ Q ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, T ਟਾਈਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ DQ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਚਾਰਜ ਜੋ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਟਾਈਮ DT, ਤਾਂ I ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, I ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ DQ/DT, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸਪੋਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 'ਤੇ, E ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, N। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, N ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਹੈ, E ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼, ਤਾਂ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ NE ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ I ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, NE/T, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕਵਾਂਗੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਹੈ ਐਂਡ फ्री इलैक्ट्रॉन्स है, ठीक है। दी इलैक्ट्रॉन्स जो रैंडमली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट दी क्रिस्टल लैटिस। कंडक्टर का जो भी असी क्रिस्टल कंसिडर किया या लैटिस जो भी लैके चलते हैं ਉਹਦੇ 'ਚ फ्री इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ मूवमेंट ਦੇ ਨਾਲ जो करंट आएगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, इलैक्ट्रिक करंट, ठीक है। दी मैटेलिक कंडक्टर in which free electrons are responsible for electricity, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ
स्केलर क्वांटिटी है, इनू असी दिमाग 'ਚ रखना है। नो डाउट असी डायरैक्शन देखते हाँ, पर कुछ इस तरह दी कंसिडरेशन है कि अगर असी इलैक्ट्रिक करंट नू कैलकुलेट करना है तो उहदे लई असी की कर सकते हाँ, एलजैबरा जो है साडे कोल हुंदा मैथेमैटिक्स दे अंदर, सिंपल एलजैबरा ਉਹਨੂੰ ਹੀ यूज़ किया जाता है। ਉਹਦੇ बेसिस ਦੇ ਉੱਪਰ ही असी कहने आ कि ये साडे कोल एक स्केलर क्वांटिटी है और ਇਹਦਾ SI यूनिट है एम्पीयर। ठीक है, SI यूनिट की है एम्पीयर है। और हुण असी एम्पीयर दी अगर डेफिनेशन लिखनी है तो असी की कवांगे, करंट दा फॉर्मूला एज यू नो I इज़ इक्वल टू Q/T है। Q चार्ज है, T टाइम है, तो I नू असी कादे च लिखते हैं यूनिट्स एम्पीयर। कादे बराबर हो जाएगा 1 एम्पीयर। चार्ज का यूनिट की हुंदा है 1 कूलम और टाइम का यूनिट 1 सेकेंड। तो इत्थों असी 1 एम्पीयर की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि करंट थ्रू कादे विचों फ्लो कर रहा है, करंट एक वायर कह दिए या कंडक्टर दे विचों फ्लो कर रहा है। करंट थ्रू आ वायर, उन्होंने असी की कहना है 1 एम्पीयर। कदों 1 एम्पीयर कवांगे, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है 1 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज की करता है किसी कंडक्टर दे विचों फ्लो करता है। फ्लो करेगा कंडक्टर मतलब वायर किन्ने टाइम दे लई, 1 सेकेंड दे लई, तो उन्होंने असी की बोल दांगे 1 एम्पीयर। करंट थ्रू दी वायर इज कॉल्ड 1 एम्पीयर। कदों, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू आ वायर फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया साडे कोल इलैक्ट्रिक करंट। नैक्सट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ਇਹਦੇ अंदर असी की करना है, असी ये चीज़ दसनी है कि जो एक कंडक्टर है ਉਹਦੇ अंदर जो फ्री इलैक्ट्रॉन्स है वो ਕਿਹੜੀ वेलोसिटी ਦੇ ਨਾਲ मूव कर रहे हैं, या फिर अगर असी इस कंडक्टर नू रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि मतलब सारे इलैक्ट्रॉन्स जो है इक्को डायरैक्शन 'ਚ मूव करन, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ वेलोसिटी ਨਾਲ मूव करनगे, वो सारा कुछ असी इस टॉपिक के अंडर पढ़ना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ਇਹਦੇ अंदर सब तो पहले असी दसांगे कि कंडक्टर का मतलब सिंपल जिहा जो सानू पता है, कंडक्टर जो है एक मटीरियल है तो ਉਹਦੇ अंदर की होणगे, एटम्स होणगे। और ये जिहड़े एटम्स है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड स्ट्रोंगली बाउंड। ठीक है, सारे एटम्स एक दूसरे दे बहुत क्लोज है और स्ट्रोंगली बाउंड है। फिर असी गल करांगे वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स दी, क्योंकि कंडक्टर दे अंदर जो वेलेंस शैल्स होंदे आ एटम्स दे अंदर, एटम्स जो है उहदे वेलेंस शैल दे अंदर जो इलैक्ट्रॉन्स है दे आर लेस टाइटली बाउंड। ठीक है, एज यू नो इन प्रीवियस चैप्टर या लोअर क्लासेस कि कंडक्टर दे अंदर जो वेलेंस शैल दे इलैक्ट्रॉन्स है दे आर लेस टाइटली बाउंड एंड ईजी टू रिमूव फ्रॉम दी वेलेंस शैल। ठीक है, वो ईजीली जो है अपने वेलेंस शैल नू छड्ड के फ्री हो सकते हैं। और जो ये फ्री इलैक्ट्रॉन्स है इन्हां नू ही असी कंडक्शन इलैक्ट्रॉन्स कहते हाँ। और ये इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरैक्शन, और एनी डायरैक्शन च मूव करते हैं तो इनू असी की कहने आ रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स। रैंडम मोशन नू असी जिगजैग मोशन भी कह सकते हैं, मतलब कोई भी मोशन हो सकती है जिगजैग मैनर च। और जिथों असी स्टार्ट करांगे, सपोज इलैक्ट्रॉन की मोशन है उसी डायरैक्शन च एरोज लगाते जावांगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पैटर्न इस तरह ही होए, कोई भी पैटर्न हो जाएगा। रैंडम मोशन है मतलब जिगजैग पैटर्न असी कुछ भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि कुछ इस तरह सपोज इलैक्ट्रॉन मूव करे। ठीक, हुण असी कहांगे कि कॉज की है रैंडम मोशन का। कॉज इज थर्मल एनर्जी। थर्मल मतलब हीटिंग इफेक्ट के कारण जो एनर्जी है किसी इलैक्ट्रॉन कोल जो किहदे अंदर प्रेजेंट है, कंडक्टर दे अंदर, और ये थर्मल एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी रैंडम मोशन। ठीक है, इस तो बाद नैक्सट है थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी जो इहदा की मतलब है कि किन्नी वेलोसिटी दे नाल इलैक्ट्रॉन्स जो है
मूव कर रहे हैं रैंडमली थ्रू आउट दी लैटिस। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी अगेन कित्थों जनरेट होएगी? विद दी हैल्प ऑफ थर्मल एनर्जी, क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਉਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0। कंडक्टर दे अंदर अगर सब इलैक्ट्रॉन्स, एवरेज मतलब टोटल सारे इलैक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी मतलब एक इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एवरेज मतलब सारे टोटल जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन्स है उन्हां दी वेलोसिटी वो की हुंदी है? 0। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u1 ਵੈਕਟਰ, second with u2 vector, so on up to n number of electrons ਅਸੀਂ consider ਕਰ ਲਿਆ। और as you know average thermal velocity is 0, ਤਾਂ average ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ velocities ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ डिवाइड कर देंगे किन्ने नंबर ऑफ टोटल इलैक्ट्रॉन्स है, और दिस इज़ आ एवरेज थर्मल वेलोसिटी, और ਇਹਦਾ आंसर की है 0। क्यों 0 है? इन्हों असी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं इलैक्ट्रॉन्स सब दियाँ इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटीज़ के कारण जो आप टोटल ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 0। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਵਾਇਰ ਹੈ, ठीक है, और इस वायर के अंदर जो है सब तो पहला जदों तक असी कोई भी ये अक्रॉस बैटरी नहीं अप्लाई करते, तो इस कंडक्टर की सपोज लेंथ है L, ठीक है, और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और इस कंडक्टर के अंदर की है पॉजिटिव आयंस है या फिर फ्री इलैक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी डायरेक्शन से मूव कर सकते हैं, और नेट एवरेज वेलोसिटी इज़ 0। हुण सैकेंड केस च असी की करांगे कि जो ये कंडक्टर है इहदे अक्रॉस असी की है एक बैटरी लगा देंगे। ठीक है, बैटरी लगाने का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव जो वड्डी लाइन है दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो असी छोटी लाइन लगावांगे दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और पॉजिटिव ते नेगेटिव टर्मिनल मिलके एक सैल बना रहे हैं बैटरी का। इस तरह जिन्ने भी असी अगे अगे टर्मिनल लगा देंगे उस हिसाब के नाल बैटरी का पता चलेगा किन्नी वोल्ट दी बैटरी असी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल असी कंसिडर किया V, लेंथ है कंडक्टर दी L, और ये अंदर की है अगर बैटरी है पोटेंशियल डिफरेंस है तो नैचुरल जी गल है इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, जो असी पहले यूनिट से पढ़ के आए हैं। तो इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा कित्थों कित्थे होएगा? फ्रॉम दी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन की हो जाएगी फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू दी नेगेटिव टर्मिनल, मतलब इस डायरेक्शन से जाएगा एरो। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हुण जो इलैक्ट्रॉन्स है उन्हां दी मोशन ते की असर होएगा? सारे इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है नेगेटिवली चार्जड है, या तो इस तरह लिख दईए या फिर असी इदां भी लगा सकते हैं, ये जो डॉट्स लगाए है उत्थे असी नेगेटिव चार्ज बना दिए, या फिर इस तरह इलैक्ट्रॉन्स लिख दईए। ये सारे इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है बैटरी लगाने तो बाद रैंडम मोशन च नहीं रहणगे, दे विल मूव इन वन डायरेक्शन। किहड़ी डायरेक्शन च मूव करनगे? हुण देखो पॉजिटिव टर्मिनल दे वल जिहड़े नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल है दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, सारा नेगेटिव इलैक्ट्रॉन्स जो है वो सारे किहड़ी डायरेक्शन च ट्रैवल करना शुरू करनगे? टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। हुण सारे इलैक्ट्रॉन्स की इक्को डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, हुण असी कहांगे कि हुण अगर असी ये सारे इलैक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी नू फाइंड आउट करना है तो दैट विल नॉट बी 0।
ठीक है। क्यों नहीं जीरो होएगी, क्योंकि हुण सारे एक डायरैक्शन च है, पहला रैंडम सी, इसलिए असी की बोल रहे सी, जीरो बोल रहे सी। ठीक, हुण असी कवांगे कि साडे कोल जदों बैटरी लगाउण दे नाल कितना इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप होएगा। एज यू नो इन लास्ट चैप्टर असी लिखिया होया है इलैक्ट्रिक फील्ड दा फॉर्मूला पोटेंशियल नू डिवाइड कर दिंने आ, जो भी लेंथ है dv/dr असी लिखिया है, उत्थों ही असी इत्थे पोटेंशियल v लिया होया है और लेंथ कितनी लई है l, तो v/l असी कंसिडर कर लांगे। नंबर 1 हुण इस नंबर 1 चलो असी इस इक्वेशन नू बोल दिता, नंबर 2 है दिस इक्वेशन। हुण इस तो बाद असी की कवांगे कि अगर मेरे को इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेटेड है तो असी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है पिछले चैप्टर्स असी पढ़िया है लास्ट यूनिट च, इस तरह लिख सकते हैं। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिहड़ी है इलैक्ट्रिक फील्ड दे ऑपोजिट डायरैक्शन च होएगी। किस तरह पता चलिया, क्योंकि नेगेटिव की दिखाएगा कि दोनों दी डायरैक्शन की है ऑपोजिट है। अगर इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन च है तो फोर्स किस डायरेक्शन च जाएगी, इस डायरेक्शन च। ठीक है, और नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन से क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स लग रही है ना जो इलेक्ट्रॉन्स ते है, और फोर्स इस डायरेक्शन से है, इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से है, जिन्हों असीं इस फॉर्मूला दे नाल भी दस सकते हैं कि इस तरह क्यों है। ठीक, उस तो बाद हुण असीं की करांगे, इहदे अंदर जो है साडे कोल अगर एक्सलरेशन का असी फॉर्मूला लिखना है तो फोर्स के फॉर्मूला चो लिख सकते हैं कि इलैक्ट्रॉन्स कितनी एक्सलरेशन के नाल मूव कर रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा है, मास इनटू एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला की होएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक, फोर्स असी कितनी कंसीडर कर ली इत्थे, -e कैपिटल E वेक्टर डिवाइडेड बाय m। दिस इज़ द एक्सप्रैशन फॉर एक्सलरेशन, जिहदे नाल ये पार्टिकल्स जो है इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन आ कंडक्टर, या जिहड़ी एक्सलरेशन दे नाल एक्सलरेट हो रहे हैं। हुण इस तो बाद असी गल करनी है रिलैक्सेशन टाइम की। रिलैक्सेशन टाइम इज़ अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कई बारी 1 मार्क से ही डेफिनेशन आ जाती है। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है इहदा मतलब की होएगा साडे कोल, इट इज़ अ शॉर्ट टाइम, और इस टाइम दे विच की होएगा, जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स है दे आर एक्सलरेटेड, बट बिफोर इट अंडरगोज अ कोलिजन विद पॉजिटिव आयन्स। मतलब इत्थे असी की कह रहे हैं, जदों ही इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट पाथ दे विच की होएगा, क्योंकि इस कंडक्टर दे अंदर पॉजिटिव आयन्स भी है, जिद्दां ही कोई एक इलैक्ट्रॉन मूव किया वो पॉजिटिव आयन दे नाल कोलिजन करेगा ना, क्योंकि देखो पॉजिटिव आयन्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिद्दां ही कोई इलैक्ट्रॉन मूव करेगा तो इट विल कोलाइड विद पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो असी कवांगे रिलैक्सेशन टाइम का मतलब की है, जदों तक कोई इलैक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन दे नाल कोलाइड नहीं कर रहा, मतलब वो टाइम स्पैन जदों तक एक इलैक्ट्रॉन ने मूव किया पर पॉजिटिव आयन दे नाल कोलिजन नहीं हुई, उस टाइम पीरियड नूं असी बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब बिफोर दी कोलिजन जिन्ना टाइम कोई इलैक्ट्रॉन मूव कर रहा है विदाउट कोलिजन विद पॉजिटिव आयन। देखो जिद्दां इलैक्ट्रॉन मूव किया, ये जरूरी तो नहीं उहदी स्टार्टिंग च ही वो पॉजिटिव ना कोलाइड करे, कुछ टाइम स्पैन दे लई जिन्ने टाइम दे लई वो पॉजिटिव आयन दे नाल कोलाइड नहीं कर रहा, उस टाइम नूं असी की कह दिंने आ रिलैक्सेशन टाइम। द शॉर्ट टाइम फॉर विच अ फ्री इलैक्ट्रॉन एक्सलरेट किया बिफोर इट अंडरगोज अ कोलिजन विद अ पॉजिटिव आयन इन द कंडक्टर, और इनू असी की बोल दिंने आ रिलैक्सेशन टाइम। एक होर डेफिनेशन है, दैट इज़ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब की है, मीन मतलब एवरेज, मतलब असी एक इलैक्ट्रॉन की गल नहीं करनी, असी सारे इलैक्ट्रॉन्स की गल करांगे। तो ये असी की डेफिनेशन लिखांगे, पाथ है तो मतलब डिस्टेंस, तो ये असी कहना है ये सारे इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है जिन्ना पाथ कवर कर रहे हैं बिफोर कोलिजन। जिद्दां रिलैक्सेशन टाइम असी बिफोर कोलिजन कहना है, इस तरह मीन फ्री पाथ भी, जिद्दां फस्ट इलैक्ट्रॉन है किसी आयन दे नाल कोलाइड करन तो पहला
कितना डिस्टेंस कवर किया, इस तरह सैकेंड है, थर्ड है, सारिਆਂ ਦਾ टोटल जिन्ना डिस्टेंस कवर होएगा बिफोर कोलिजन दैट इज़ नोन एज मीन फ्री पाथ। ठीक है, इनू असी की लिख दांगे दी एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय all electrons before the collision with positive ions in the conductor, positive ions in the conductor। ये हो गया मीन फ्री पाथ। हुण इस तो बाद की है, अगर असी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की गल करिए तो हुण देखो असी थर्मल वेलोसिटी पढ़ लिया, इनीशियल वेलोसिटी है जदों तक बैटरी अप्लाई नहीं की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है जिद्दां ही बैटरी अप्लाई करती सारे इलैक्ट्रॉन्स इक्को डायरैक्शन च मूव करनगे, तो एवरेज मतलब सब दी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी जदों असी पोटेंशियल अप्लाई कर दिता, इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिता, दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज क्यों लगाता, क्योंकि सारे इलैक्ट्रॉन्स की गल करनी है विद विच फ्री इलैक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड मतलब फ्लो करना अंडर, कदों अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। जदों असी एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई कर देंगे तो सारे इलैक्ट्रॉन्स इक्को डायरैक्शन से मूव करनगे। किन्नी वेलोसिटी नाल मूव करनगे, दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हुण असी की कहने आ, सपोज v1 वैक्टर वेलोसिटी है फस्ट इलैक्ट्रॉन दी, v2 वैक्टर सैकेंड इलैक्ट्रॉन, v3 वैक्टर थर्ड, सो ऑन nth इलैक्ट्रॉन दी फाइनल वेलोसिटी है vn। ठीक, हुण असी इन v1 या v2 v3 इन्हों अलग अलग नू ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बोलना है, इन्हां दी एवरेज जदों निकालांगे दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो हुण असी इत्थे एक इक्वेशन लिख सकते हैं जिद्दां असी +1 च करते सी, u इज़ इक्वल टू v प्लस at। तो फस्ट इलैक्ट्रॉन दी इनीशियल वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी सी u1 वैक्टर, फाइनल वेलोसिटी v1 वैक्टर है, एक्सलरेशन है सब दी सेम ए वैक्टर, और रिलैक्सेशन टाइम नू कुछ असी इस तरह डिनोट करते हैं। फस्ट इलैक्ट्रॉन दे लई t1, ये उपर वैक्टर नहीं लगेगा। ठीक, इस तरह सैकेंड इलैक्ट्रॉन का हो गया u2, v2 वैक्टर हो गया ए वैक्टर, t2 रिलैक्सेशन टाइम, सो ऑन। इस तरह nth इलैक्ट्रॉन दे लई vn वैक्टर प्लस ए वैक्टर tn। ये सारा लिख लिया। हुण देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब तो यही है कि ये सारियां v1 v2 v3 सब दे जदों असी एडिशन करते हैं दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी नू vd नाल लिखते हैं, तो इनू असी की लिखांगे v1 वैक्टर प्लस v2 वैक्टर, सो ऑन अप टू vn वैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। हुण देखते हैं ज़रा इत्थे कि साडे कोल की आ जाएगा, इत्थे v आएगा क्योंकि फाइनल इज़ इक्वल टू u प्लस at होएगा, तो ये थोड़ा जा चेंज कर लेने इत्थे। ठीक है, फॉर्मूला जो सीगा उहदे च असी इत्थे फाइनल वेलोसिटी लिखनी है, इत्थे इनीशियल वेलोसिटी। तो v1 ये v1 है और ये u1 है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हुंदा है फाइनल इधर हुंदा और इनीशियल इधर, v इज़ इक्वल टू u प्लस at है। तो इत्थे हुण देखो v1 की वैल्यू पुट करांगे, v2 की वैल्यू, सो ऑन सब दियाँ वैल्यूज़ इत्थे सबसीट्यूट करते हैं, तो साडे कोल की आ जाएगा u1 वैक्टर प्लस a वैक्टर t1। इस तरह सैकेंड इलैक्ट्रॉन दे लिए u2 वैक्टर प्लस a t2, सो ऑन अप टू nth इलैक्ट्रॉन दे लिए un वैक्टर प्लस a वैक्टर tn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। हुण इनू असी किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, सारियां इनीशियल वेलोसिटीज़ नू अलग तो ऐड कर लीए। ठीक है, मतलब इकट्ठा कर लिया, और एक्सलरेशन जो है सारियां चो कॉमन, और अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर t1 t2 सो ऑन अप टू tn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। n नू मैं ये नीचे भी लैके जाऊँगी और n नू ये नीचे भी, तो साडे कोल की आ जाएगा u1 वैक्टर प्लस u2 वैक्टर प्लस सो ऑन अप टू un वैक्टर डिवाइडेड बाय n प्लस a वैक्टर t1 t2
सारे रिलैक्सेशन टाइम्स है, वेक्टर नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय n। और ਇਹਦਾ आंसर की होएगा 0, क्योंकि ये चीज़ की है एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जिन्हों असी स्टार्टिंग च की लिख दिता सी, इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो इनू असी की कर देंगे 0 सबस्टिट्यूट कर देंगे, तो की आ जाएगा a वेक्टर T1 प्लस T2 सो ऑन अप टू Tn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। इनू असी की कह देंगे जो है साडे कोल ये आ जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और इनू असी कादे नाल डिनोट कर सकते हैं, सिंपल टी दे नाल। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी साडे कोल कादे बराबर आ जाएगी, वी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन आ गया, और नाल साडे कोल की है टी। ठीक, एक्सेलरेशन दा फॉर्मूला भी असी कीता होया है, दैट इज़ ये हो गया एक्सेलरेशन दा फॉर्मूला। असी सबस्टिट्यूट कर देंगे एक्सेलरेशन दा फॉर्मूला, तो वी डी वेक्टर की आ जाएगा माइनस ई वेक्टर अपॉन एम। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलैक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिनोट करते हैं वी डी वैक्टर ਦੇ ਨਾਲ, और इलैक्ट्रिक करंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिनोट करते हैं आई ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਸਟਲੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, और ये अक्रॉस कंडक्टर के अक्रॉस असी एक बैटरी लगाती, बैटरी मतलब कोई भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल नू असी वी दे नाल डिनोट करते हैं। अगर पोटेंशियल लगा दिता तो नैचुरली इलैक्ट्रिक फील्ड भी होएगा जो पिछले यूनिट च पढ़िया है, और इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होएगी। ठीक, कंडक्टर है उसकी लेंथ कंसिडर कर ली L, और एरिया इहदा कंसिडर कर लिया A। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग टूवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन दिस डायरेक्शन। सारे जिन्ने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करनगे केड़ी वेलोसिटी दे नाल, ये सारे मूव करनगे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ का सम कर दिए दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हुण इस तो बाद असी की कह दिंदे आ, सपोज कि साडे कोल देखो वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का, अगर असी देखना है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो किस तरह लिख सकते हैं। कंडक्टर सिलेंड्रिकल है तो असी इत्थे फॉर्मूला लगाने की बजाय सिंपली लिख दईए, एरिया नू मल्टीप्लाई कर दो लेंथ दे नाल, वॉल्यूम आ जाएगा साडे कोल। और अगर इस कंडक्टर दे अंदर इफ देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स, तो साडे कोल किन्ने नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इत्थे, क्योंकि वॉल्यूम है AL, n है पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम दे अंदर n है, तो टोटल किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हो जाएंगे NaL नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। असी ये बेसिकली निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो असी रिलेशन डेवलप करनी है करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे अंदर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला सानू ये वाला पता है। ठीक, और करंट का फॉर्मूला अगर असी लिखिए तो करंट का फॉर्मूला पिछले आर्टिकल च कीता है, चार्ज नू डिवाइड करना है टाइम दे नाल। ठीक, हुण इहदा मतलब अगर करंट दे फॉर्मूला चों ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी नू असी इवैल्यूएट करना है, तो मैनू करंट दे फॉर्मूला च एक तो चार्ज की गल करनी है, दूसरा टाइम की गल करनी है। तो हुण देखो चार्ज असी किस तरह इत्थे फाइंड आउट कर सकते हैं कितना चार्ज है। इस लिए पहला मैं वॉल्यूम देखा, फिर असी कंसिडर किया किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है, फिर असी कवांगे अगर मैं हुण चार्ज फाइंड आउट करना है तो असी की करांगे, चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन्स जो है E होएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चार्ज अगर कढ़ना है तो कितना चार्ज है हर एक इलैक्ट्रॉन के उपर ई दे नाल लिखते हैं, दैट इज़ ई मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है हर एक पार्टिकल जो है चार्ज पार्टिकल है। तो मैं की कीता किन्ने नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स है, हर एक इलैक्ट्रॉन का चार्ज है ई, ये नाल मेरे को की फाइंड हो जाएगा, टोटल चार्ज फाइंड हो जाएगा। क्यू की जगह तो असी ये पुट कर देंगे। हुण टाइम किस तरह कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला सानू पता है, डिस्टेंस अपॉन की आएगा टाइम आएगा।
ठीक है। हुण वेलोसिटी किहड़ी कंसीडर करनी है इत्थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि असी इत्थे कादी गल करनी है, रिलेशन भी कादे कादे विच है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड जो है करंट। तो इसलिए मैं इत्थे v की जगह वी डी लिखूँगी और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मतलब कंडक्टर की लेंथ कितनी है, l लेंथ है। और टाइम नू सपोज असी t नाल डिनोट कर लिया और टाइम कैलकुलेट करना है तो की आ जाएगा L/VT। ठीक है, टाइम भी हो गया, चार्ज भी हो गया। हुण असी इत्थे सबसीट्यूट कर देंगे, की आंसर आ जाएगा आए दा NaLe डिवाइडेड बाय की हो जाएगा L/VD है और ओ की चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, L नाल L कैंसर, आए दी वैल्यू कितनी आ जाए। नैक्सट टॉपिक है इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी का मतलब की हुंदा कि जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स है इनसाइड आ कंडक्टर वो किन्नी वेलोसिटी दे नाल मूव कर रहे हैं और किन्नी इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो अप्लाई की गई। ठीक है, ये दोनों चीज़ों के जो रेशो है उन्होंने असी की कह दें इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी कह दें। ठीक है, और इनू डिनोट करते हैं म्यू दे नाल। तो फॉर्मूला की होएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स और उन्होंने डिवाइड कादे नाल कर देना है, असी उन्होंने डिवाइड करना है किन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी नू असी म्यू दे नाल डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यदि डेफिनेशन की बनेगी, मोबिलिटी ऑफ कादी मोबिलिटी निकालनी है, फ्री इलैक्ट्रॉन्स और केदे अंदर हो रहा है सारा कुछ, कंडक्टर दे अंदर, इज़ डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड, कौन एक्वायर कर रहा है, फ्री इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। फॉर्मूला हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला असी पिछले जो है टॉपिक्स च पढ़िया है, इनू असी की लिखते हैं -e वैक्टर अपॉन m इंटू टी। ठीक, तो असी ड्रिफ्ट वेलोसिटी च इनू सबसीट्यूट कर सकते, अगर वैक्टर फॉर्म च लिखना है तो दोनों ते वैक्टर, अगर असी स्केलर मतलब यदि मैगनीट्यूड वाइज दसना है तो असी इनू इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोबिलिटी ज़्यादातर असी मैगनीट्यूड वाइज कैलकुलेट करते हैं तो मोस्टली असी इनू इस तरह मैगनीट्यूड वाइज लिखना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नू मैगनीट्यूड वाइज जदों लिखना है तो माइनस नू हटा देंगे, क्योंकि माइनस सिर्फ सानू डायरैक्शन बारे नॉलेज देगा। तो मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा ये फॉर्मूला है मैगनीट्यूड वाइज। इत्थे सबसीट्यूट करांगे तो मोबिलिटी की हो जाएगी, इस तरह लिखन तो बाद ई दे नाल ई कैंसल हो जाएगा, तो इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा ET/m। इनू असी याद रखांगे, मोबिलिटी दे फॉर्मूला नू स्टार्टिंग कित्थों करनी है, जो डेफिनेशन दस रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी नू मैगनीट्यूड वाइज लिखांगे, इत्थे सबसीट्यूट करांगे और मोबिलिटी का यह फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, हुण एक चीज़ होर असी इत्थे कर सकते हाँ कि असी पिछला जो है टॉपिक किया सी करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी रिलेशन वाला, तो फॉर्मूला सी NaEVD। ठीक है, तो असी इत्थे एक चीज़ कर सकते हैं, VD की जगह ते की पुट कर सकते हैं। देखो इत्थे VD की जगह ते की पुट किया जा सकता, म्यू ई। तो ये सारे रिलेशनस जिहड़े है तुसी दिमाग च रखने हैं, ये उही एक दो रिलेशनस तो ही असी निकालते हैं। VD की जगह ते हुण मैं म्यू ई भी सबसीट्यूट कर सकती हाँ, तो करंट के फॉर्मूला च असी इस तरह इनू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ये इसलिए मैं दस रही क्योंकि न्यूमैरिकल्स च कई बारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बजाय तुहानू मोबिलिटी ते इलैक्ट्रिक फील्ड दिता है और फाइंड करना है करंट, तो तुहानू ये चीज़ पता होनी चाहिए है कि ये भी फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह ते असी म्यू ई भी लिख सकते हैं। हुण असी ये अगर यूनिट्स लिखने हैं मोबिलिटी दे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे यूनिट देखो, वेलोसिटी दे यूनिट सिंपल है वो देख लो की है, और इलैक्ट्रिक फील्ड दे यूनिट्स निकालन ली फॉर्मूला dV/dr आ जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट की होएगा पता है सानू, वेलोसिटी दे मीटर पर सैकेंड, और इन्हां नू डिवाइड कर दो तो मोबिलिटी दे यूनिट्स आ जाएंगे मीटर स्क्वेयर
ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वोल्ट इनवर्स 'ਚ आ जाएगा और सेकंड भी इनवर्स 'ਚ आ जाएगा। ठीक है, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖੇ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਵੋਲਟ ਇਨਵਰਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ, ਇਹ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक है इलैक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। इलैक्ट्रिक करंट जो है ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਹੀ ਉਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਥਰੂ ਆ ਵਾਇਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਡਕਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਜੋ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी मटीरियल। ठीक है, किन्नी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ एनी मटीरियल। और करंट डेंसिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ और इलैक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, और इन्होंने दोनों च रिलेशन की है, इलैक्ट्रिक करंट आई, करंट डेंसिटी जे वैक्टर, और रिलेशन है आई इज इक्वल टू जे वैक्टर डॉट ए वैक्टर इत्थे की है, एरिया, ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਕਟਰ। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਏ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੋਣ। ठीक है, पैरलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 'ਚ हमेशा कॉज होएगा, कॉज 0 डिग्री साढ़े कोल 1 होएगा। इसलिए असी कवांगे आए कदों मैक्सिमम है, कदों करंट मैक्सिमम है, व्हेन जे वैक्टर डॉट ए वैक्टर इज मैक्सिमम। मतलब बोथ आर करंट डेंसिटी एंड ए वैक्टर आर पैरलर टू ईच अदर। हुण पैरलर है तो एंगल कितना लैके चलांगे, 0 डिग्री। तो साढ़े कोल अल्टीमेटली आंसर आ गया आई इज इक्वल टू जे ए। या फिर करंट डेंसिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਆਈ, ਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਆਈ ਅਪੋਨ ਏ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਈ ਅਪੋਨ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ NAEVD। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, NAEVD ਅਪੋਨ ਏ ਨਾਲ ਏ ਕੈਂਸਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ NEVD, E अपॉन m इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो करंट डेंसिटी हो जाएगा NE स्क्वायर T बाय m इंटू इलैक्ट्रिक फील्ड। ये भी जो है करंट डेंसिटी का एक्सप्रैशन है। ये तीनों एक्सप्रैशनस जेडे है याद करने हैं, क्योंकि नुमैरिकल्स च कई बारी हुण नुमैरिकल च तुहानूं अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है तो ये वाला एक्सप्रैशन यूज़ होएगा। अगर सपोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं गिवन, इलैक्ट्रिक फील्ड गिवन है, रिलैक्सेशन टाइम गिवन है, तो ये वाला एक्सप्रैशन। अगर इन्हां तो इलावा साडे कोल सिर्फ करंट ते एरिया गिवन है तो ये वाला एक्सप्रैशन असी यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट करंट डेंसिटी।